Now, what are the various causes of this business risk? Why business faces losses or insufficient profits? What are the different types of risk? Now we will discuss them. The business risks are sub-classified into natural cause, human cause, economic cause, as well as other causes. Okay, now let us discuss them one by one. Natural cause. Natural cause means कि all those happenings, uncertainties, events which are caused by nature. For example, natural calamities like of flood, of earthquake, of famine, of lightning, heavy rains, etc. are included in natural causes which leads to business losses or inadequate profits. Okay. For example, there is a flood all over and the crop get ruined, damaged. This is also lead to losses in your agriculture business. Lightning happened and because of that lightning event, what happened? Your factory got burned. This is also a business loss. आपके वहाँ पे सामान रखे थे, machines रखे थे, सब जल गई. Okay, heavy rains occurred and because of that 4-5 दिन से प्रोडक्शन रुक गया आपका, एम्प्लॉयज़ प्लेस पे पहुंच नहीं पा रहे प्रोडक्शन पॉइंट पे. तो दिस इज़ ऑल्सो अ रीज़न फॉर योर बिजनेस लॉसेज. कम प्रोडक्शन होगा तो कम सेल होगी एंड देयर विल बी लॉसेज ऑल्सो. Okay, so these are the natural causes of business risk. Now we are coming to the human causes. Human causes means it includes all those events and happenings which involved your human, which are because of human beings. Okay, like थेफ्ट, चोरी करके कोई एम्प्लॉय आपका भाग गया. लाइक डिसऑनेस्टी, उसने काम किया नहीं एंड दे सेड दे हैव कंप्लीटेड देयर वर्क. और नेग्लिजेंस, बिकॉज ऑफ देयर केयरलेसनेस योर ऑल सिस्टम्स इन द ऑफिस आर ओपन एंड देयरफॉर रात में कुछ प्रॉब्लम हुआ और पूरा ही सारे कंप्यूटर्स आपके वहाँ पे बर्न आउट हो गया. इजंट इट? तो ऑल दीज जहाँ पे ह्यूमन एलिमेंट की वजह से लॉसेस हो रहे हैं, दे आर इंक्लूडेड इन योर ह्यूमन कॉजेज. और दे वेंट ऑन स्ट्राइक फॉर 4 days, 5 days, 1 week, 1 month, एंड बिकॉज ऑफ दैट योर फैक्ट्री इज क्लोज एंड देयर इज़ नो प्रोडक्शन एक्टिविटी गोइंग ऑन. जो प्रोडक्शन नहीं होगा तो सेल नहीं होगी, सेल नहीं होगी तो प्रॉफिट्स नहीं होंगे. तो इट ऑल्सो लीड्स टू योर वॉट, टू योर losses, to the losses of the business or less profits. Okay, this is all. Management is inefficient. Your management is new, unexperienced, and they are not able to handle the activities and they are not able to manage employees. This is also, they don't have knowledge how to manage the situations and how to get more and more production and increase in efficiency of the employees. So if this is also human element involved. Management is made up of humans only. So this is also a human cause of your business losses. Now we are moving to what? We are moving to economic causes. Now what are the economic causes? Economic causes includes demand for goods, competition, price, collection of dues from customers. Means economic, wherever the word economic will come, it will include what? It will include मॉनेटरी थिंग, मनी इन्वॉल्व होगी. तो यहाँ क्या है? डिमांड कम है, आपने प्रोडक्शन कर दिया. जब गुड्स सेल ही नहीं होंगे, लोग डिमांड ही नहीं करेंगे, हाउ यू विल गेट प्रॉफिट्स, राइट? तो देयर इज़ इकोनॉमिक कॉज. प्राइस, देयर इज़ लॉट्स ऑफ सप्लाई. भाई जो प्राइस फिक्स होता है, मस्ट हैव, इतना तो पता ही होगा. प्राइस कहते हैं ना, 1 अनार 100 बीमार. तो क्या होता है, अगर 1 अनार हो और 100 लोग उसको डिमांड कर रहे हो, तो व्हाट विल हैपन कि जो सेलर होगा ही विल से व्हाट, कि जो मुझे ज़्यादा मनी देगा, प्राइस देगा, मैं उसको ये अनार दे दूँगा. तो सिमिलरली हैपन्स इन योर इकोनॉमी ऑल्सो, इन कंट्री ऑल्सो, इन बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स ऑल्सो. जो ज़्यादा पैसे देगा उसको वो चीज़ मिल जाएगी. एंड प्राइस मैकेनिज्म ऐसे ही चलता है, डिमांड एंड सप्लाई पे. ज़्यादा डिमांड है, सप्लाई कम है, तो प्राइस बढ़ जाते हैं. एंड वाइस वर्सा ऑल्सो, डिमांड कम है, सप्लाई ज़्यादा है, 100 की डिमांड है और सप्लाई 400 की है, हर जगह वो चीज़ मिल रही है, तो प्राइस गिर जाते हैं, फॉल कर जाते हैं. तो मीन्स कि प्राइस इज ऑल्सो एंड वन ऑफ द कॉज. प्राइस ज़्यादा मिल रहा है, डिमांड ज़्यादा है, सप्लाई कम है, तो आपको सेम कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पे आपने बनाया एक गुड को 10 रुपये का ही, लेकिन क्योंकि डिमांड बहुत ज़्यादा है तो वो आपका बिक रहा है 20 रुपये में, तो 10 रुपीज़ स्ट्रेट अवे प्रॉफिट हो गया पर यूनिट. ओके,
तो 10 रुपीज़ पर यूनिट स्ट्रेट अवे प्रॉफिट हो गया। और अगर आपने 1000 यूनिट्स को सेल कर दिया तो 1000 इंटू 10 कितना हो गया, 10,000 रुपीज़ हो गया प्रॉफिट स्ट्रेट अवे। ओके, तो ये है आपका प्राइस मैकेनिज्म, कैसे इकोनॉमिक लॉसेस लाता है या प्रॉफिट्स लाता है। सिमिलरली कलेक्शन ऑफ ड्यूज फ्रॉम कस्टमर्स, जनरली नाउ डेज ट्रांजेक्शन्स आर डन ऑन 2 बेसिस। जब भी हम गुड्स को सेल करते हैं तो 2 क्राइटेरिया होते हैं, एक कैश ट्रांजेक्शन्स और एक क्रेडिट ट्रांजेक्शन्स। कैश ट्रांजेक्शन्स में आप सेम टाइम पे आपको मनी मिल जाता है, बायर पे कर देता है, बट क्रेडिट ट्रांजेक्शन्स आर जनरली उधार। ओके, दे से कि यू गिव मी द गुड एंड आई विल पे यू टुमारो। कई बार हम लोग भी ऐसा हो जाता है कि दुकान पे जाते हैं, पैसे कम पड़ जाते हैं तो बोलते हैं भैया कल ले लेना, होता है। तो दीज आर योर क्रेडिट ट्रांजेक्शन्स। और कई बार ऐसा भी होता है 10 रुपये हम नहीं दे पाते हैं और बाद में हम भूल जाते हैं, ये भी ह्यूमन एलिमेंट है। कई बार जानबूझ के भूल जाते हैं, कई बार गलती से भूल जाते हैं, या कई बार वो नोट नहीं करता है और डेली ऐसे 10-5 लोग उनके पास उधार लेने आते हैं, तो वो भी कहाँ तक याद रखें शॉपकीपर्स। तो दिस इज़ फैक्ट, आप इसको एक्सेप्ट करो ना करो, दिस इज़ ह्यूमन नेचर एंड फैक्ट ऑल्सो। तो ये एक मनी इन्वॉल्व है, मनी का लॉस हुआ, आपने बोला कल दे देंगे, आप भूल गए, 2-3 दिन निकल गए, आप आए बट आप भूल गए, यू फॉरगॉट, ही ऑल्सो हैव नॉट रिकॉर्डेड। अगर प्रॉपर रिकॉर्ड नहीं है तो वो भी भूल गया, तो 10 रुपीज़ का लॉस सीधा सीधा उसको हो गया। तो दिस इज़ ऑल्सो कलेक्शन ऑफ ड्यूज़। अगर नहीं हुआ तो ये भी बिजनेसमैन के लिए लॉस है। चेंज ऑफ टेक्नोलॉजी और मेथड ऑफ प्रोडक्शन। सपोज टेक्नोलॉजी, हम काम कर रहे हैं ब्लैक एंड वाइट टेलीविजन्स पे, टेक्नोलॉजी आज आ गई कलर टेलीविज़न की, तो प्रोडक्शन हो रहा था ब्लैक एंड वाइट टीवीज़ का फैक्ट्रीज़ में, अब वो तो बेकार हो गई, ऑब्सोलीट हो गया, उनकी डिमांड ही ख़त्म हो गई। अब जैसे आज करंट सिनेरियो में अगर हम देखें तो आज करंट सिनेरियो में बेसिक फ़ोन्स की डिमांड ख़त्म हो गई। तो जो कंपनीज बेसिक फ़ोन्स बना रहे थे जैसे नोकिया, वो सब आउट ऑफ मार्केट हो गए, और जो स्मार्टफोन को रीजनेबल प्राइस पे ले आए लाइक योर सैमसंग, वीवो एट्सेट्रा, वो सब आज सर्वाइव कर गए, फ्लरिश कर गए, प्रॉफिट्स, ह्यूज प्रॉफिट्स आ गए। तो दिस इज़ ऑल्सो देयर। चेंज ऑफ टेक्नोलॉजी ऑल्सो लीड्स टू प्रॉफिट्स एज वेल एज लॉसेस फॉर सम बिजनेसेस। अगर आपने करंट सिनेरियो में अपने आप को अडेप्ट नहीं किया और आपने अकॉर्डिंग टू द डिमांड ऑफ कस्टमर्स अपने प्रोडक्ट को चेंज नहीं किया, टेक्नोलॉजी चेंज नहीं की, तो यू विल सफ़र लॉसेस। ओके, so these are the economic causes of business risk. Now we are coming to other causes. Now what are the other causes? Other causes means कि apart from human economic causes, natural causes, whatever is left, they are categorized in your other causes, like unforeseen events. जैसे कि सपोज गवर्नमेंट चेंज हो गई, अब जो नई गवर्नमेंट आई उसने कहा कि आप इस कंट्री को एक्सपोर्ट नहीं करेंगे, हमारा राइवलरी है इनसे, प्रॉब्लम है, हम टेररिस्ट बेचते हैं लोग, सो एंड सो कंट्री, गेटिंग माई पॉइंट। तो इससे क्या हो गया, अब जिनका उस कंट्री में ज़्यादा एक्सपोर्ट हो रहा था उन सेलर्स के लिए, उन बिजनेसमैन के लिए ये ह्यूज सेटबैक होगा, दे विल फेस लॉसेस। अब उनको नया मार्केट ढूंढने में, नया डिमांड क्रिएट करने में दे विल फेस टाइम, दे नीड टाइम, एंड इन दैट मीन टाइम, जो टाइम में वो नया कस्टमर्स क्रिएट करेंगे, नई कंट्रीज़ को सर्च करेंगे, तब तक तो दे विल सफ़र लॉसेज और दे विल गेट लेस प्रॉफिट्स वट एवर दे हैव प्लान्ड। ओके, दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ अदर कॉजेज। लाइक मैकेनिकल फेलियर, कि किसी ने जानबूझ के नहीं किया बट मशीन ख़राब हो गई, चलते चलते हो गई ना, हो जाते हैं, गाड़ियाँ भी चलते चलते रुक जाती हैं, आपके चलते बाद दिन भर फ़ोन चलेंगे तो फ़ोन भी हैंग हो जाते हैं। तो बिकॉज ऑफ दैट प्रोडक्टिविटी इन्फ्लुएंसेस, प्रोडक्टिविटी हैम्पर्स, और जब प्रोडक्शन रुक जाएगा, एक दिन अगर मशीन नहीं ठीक हुई, अगले दिन बोला लॉकआउट है, मैकेनिक नहीं आ पाया, तीसरे दिन मैकेनिक आया तो 2 दिन काम नहीं हुआ। तो अगर एक दिन में आप 100 यूनिट्स बनाते हैं और वो 100 यूनिट्स पे आप 10 रुपये में वो बेचते हैं, तो यानी कि 100 × 10 1000 रुपीज़ की आपकी सेल होती है, और 2 दिन वो काम नहीं हुआ तो 2000 रुपीज़ प्रॉफिट्स आपके गए पानी में। तो दिस इज़ योर व्हाट अदर कॉजेज़। Okay, so this was your topic of business risk and the nature of business risk, as well as we also discussed various different causes of business risk. Thank you.